محرک چینل کی تحقیق کے نتیجے میں ہمیں کامیابی کے ایک مکمل جال کی معلومات ملی ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان بہت کامیاب ہے وہ اس جال کو چاہتے یا نہ چاہتے استعمال کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورکس 5 لوازمات پر مشتمل ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان 5 سنہری نیٹ ورکس کی تفصیلی تشریح اور تفصیل۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے اور ہو سکے تو نوٹس بھی لے لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہر نقطے کو گہرائی سے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ ان کی اہمیت اور عملی اطلاق کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ نمبر 1، لوگوں کا نیٹ ورک، تعلقات کی اصل دولت۔ انسان ایک سماجی جانور ہے اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تنہائی میں کی گئی محنت سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ سماجی طور پر کتنا مربوط ہے۔ لوگوں کا نیٹ ورک یا سوشل کیپٹل در حقیقت وہ پوشیدہ خزانہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہماری روایتی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ کام بولو، منہ بند رکھو، لیکن عملی دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور یہ اہم نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، یہ اہم ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں۔ کامیابی کے سفر میں لوگوں کا نیٹ ورک 3 اہم ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: مینٹورز، ہم خیال ساتھی، اور شاگرد یا فالوورز۔ ایک اچھا مینٹور آپ کے لیے وقت کی مشین کا کام کرتا ہے۔ وہ غلطیاں جو اس نے 10 سال میں سیکھیں وہ آپ کو 10 منٹ میں سکھا کر آپ کا قیمتی وقت بچا سکتا ہے۔ مینٹور کی بصیرت آپ کو ان گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ دوسری طرف ہم خیال ساتھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ترقی کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ مقابلے اور تعاون کی فضا میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ حلقہ احباب ہے جو آپ کو مایوسی کے وقت سہارا دیتا ہے اور کامیابی کے وقت جشن مناتا ہے۔ نیٹ ورکنگ کا مطلب محض بزنس کارڈز کا تبادلہ یا سوشل میڈیا پر فرینڈ لسٹ بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب قابل بھروسہ تعلقات استوار کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کو پہلے جمع کرنا پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے کام آنا، بے غرض مدد کرنا اور خلوص بانٹنا، تبھی آپ ضرورت کے وقت اس سے کام لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے تمام بڑے دروازے، چاہے وہ کیریئر کا ہو، بزنس کا ہو یا شہرت کا، کسی نہ کسی چوکیدار کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ چوکیدار ایک انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کا لوگوں کا نیٹ ورک مضبوط ہے تو ایک فون کال، ایک سفارش یا ایک ملاقات وہ کام کر سکتی ہے جو سالوں کی ڈگریاں اور محنت نہیں کر سکتی۔ تنہا پرواز کرنے والا عقاب بلندی پر تو جا سکتا ہے، لیکن لمبا سفر ہمیشہ کارواں کی شکل میں ہی طے ہوتا ہے۔ نمبر 2، سکلز کا نیٹ ورک، ہنر کا ناقابل شکست ہتھیار۔ 21ویں صدی میں مہارت کی تعریف بدل چکی ہے۔ اب صرف ایک فن میں ماہر ہونا کافی نہیں رہا۔ پرانے زمانے میں ایک شخص جو صرف جوتے بنانا جانتا تھا ساری زندگی اسی پر گزار دیتا تھا، لیکن آج مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی یلغار نے دنیا کو بدل دیا ہے۔ آج کامیابی کا راز سکل سٹیکنگ میں ہے۔ سکل سٹیکنگ کا مطلب ہے مختلف اور بظاہر غیر متعلقہ مہارتوں کو آپس میں جوڑ کر ایک نایاب اور قیمتی مجموعہ تیار کرنا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہزاروں بہترین پروگرامز موجود ہیں اور ہزاروں بہترین بولنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو بہترین پروگرامر بھی ہو اور بہترین پبلک سپیکر بھی، وہ نایاب ہے۔ یہ شخص صرف کوڈ نہیں لکھے گا بلکہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی ٹیکنالوجی کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے گا، سرمایہ کاروں کو قائل کر سکے گا اور ٹیم لیڈ کر سکے گا۔ یہاں اس کے 2 ہنر مل کر 1 اور 1 2 نہیں ہوں گے بلکہ 1 اور 1 11 بن گئے ہیں۔ یہی سکلز کا نیٹ ورک ہے۔ جب آپ کے پاس 1 سے زائد ہنر ہوتے ہیں تو آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ کا دوسرا ہنر دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔
स्किल्स के इस नेटवर्क में सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का तवाज़ुन जरूरी है। हार्ड स्किल जैसे अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, मेडिकल आपको नौकरी दिलाता है, जबकि सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जज्बाती जहानत आपको तरक्की दिलाता है। अपने अंदर सीखने की ऐसी भूख पैदा करें कि आपका दिमाग एक टूल किट बन जाए जिसमें हर मसले का हल मौजूद हो। अगर आप लिखना जानते हैं तो साथ में मार्केटिंग सीखें। अगर आप मार्केटिंग जानते हैं तो साथ में डाटा एनालिसिस सीखें। ये जाल जितना वसी और मजबूत होगा, आप इतने ही नाकाबिले मुतबादल बन जाएंगे। याद रखें, मुस्तकबल इनका नहीं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि उनका है जो मुख्तलिफ चीजों को जोड़कर नई तख्लीक करने का हुनर जानते हैं। नंबर 3, बिजनेस का नेटवर्क। अपनी आजादी की मशीन खुद बनाएं। कारोबार करना और कारोबारी नेटवर्क बनाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक दुकानदार जो सुबह शटर खोलता है और शाम को बंद करता है, वो कारोबारी तो है, लेकिन वो अपने ही कारोबार का कैदी है। अगर वो बीमार हो जाए या छुट्टी पर चला जाए तो इसकी आमदनी रुक जाती है। ये आजादी नहीं है। हकीकी कामयाबी बिजनेस इकोसिस्टम बनाने में है। बिजनेस का नेटवर्क वो निजाम है जहां आपके मुख्तलिफ कारोबारी मफादात एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक खुदकार मशीन की तरह काम करते हैं। इसे समझने के लिए मैकडोनल्ड या अमेज़न की मिसाल लें। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेची, उन्होंने पूरा सप्लाई चेन कंट्रोल किया। बिजनेस नेटवर्क बनाने का मतलब है कि आप अपने हरीफों के साथ दुश्मनी की बजाय शराकतदारी करें, अपने क्लाइंट्स को अपने तवील मुद्दती पार्टनर्स में तब्दील करें और ऐसी सर्विसेज तख्लीक करें जो एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो सिर्फ प्लॉट बेचने तक महदूद ना रहें। आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि आप तामीराती कंपनी, इंटीरियर डिजाइनर और कानूनी मशीरों के साथ जुड़े हों। जब ग्राहक आपके पास आए तो आप इसे वन विंडो सोल्यूशन फराहम करें। इस तरह हर बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए ग्राहक लाता है। बिजनेस नेटवर्क में ऑटोमेशन और डेलीगेशन कलीदी हैसियत रखते हैं। आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जहां आपकी जाती मौजूदगी के बगैर काम चलता रहे। जब आप टीमें बना लेते हैं और दूसरे कारोबारी इदारों के साथ स्ट्रेटेजिक इल्हाक कर लेते हैं तो आपका कारोबार एक छोटे से तालाब से निकलकर समंदर में तैरने के काबिल हो जाता है। ये नेटवर्क आपको माशी झटकों से भी बचाता है। अगर मार्केट के हालात की वजह से एक बिजनेस मुतासर होता है तो नेटवर्क में मौजूद दूसरा बिजनेस इसे संभाल लेता है। लिहाजा सिर्फ दुकान न खोलें, बल्कि एक सल्तनत तामीर करने का सोचें जहां हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत कर रही हो। नंबर 4, सोशल मीडिया का नेटवर्क। अपनी आवाज को ताकत दें। 21वीं सदी में गुमनामी सबसे बड़ा ऐब है। आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन लिखारी या बेहतरीन कारीगर हो सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया आपको नहीं जानती तो आपकी सलाहियतें महदूद दायरे में दम तोड़ देंगी। सोशल मीडिया का नेटवर्क महज लाइक्स और शेयर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये अटेंशन इकोनॉमी यानी तवज्जो की मैशत का दौर है। जिसके पास लोगों की तवज्जो है, इसके पास ताकत और दौलत दोनों है। सोशल मीडिया आपको जुग्राफियाई सरहदों से आजाद करता है। एक छोटे से कमरे में बैठकर आप अपनी आवाज अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस नेटवर्क को बनाने के लिए महज मवाद यानी कंटेंट डालना काफी नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी बनाना जरूरी है। आपको अपने फॉलोअर्स के साथ एक रिश्ता कायम करना होता है जो इत्मीनान पर मबनी हो। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, और जब वो आपकी बात सुनते हैं तो आप उन्हें अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपना नजरिया बेच सकते हैं। ये आपका जाती मीडिया हाउस है। माजी में अपनी बात पहुंचाने के लिए अखबारों और टीवी चैनल्स की मिन्नतें करनी पड़ती थीं। आज आपका स्मार्टफोन आपका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और कदर वैल्यू फ्राहम करना शर्त है। आपको लोगों की जिंदगी में कुछ न कुछ वैल्यू शामिल करनी होगी, चाहे वो तालीम हो, तफरीह हो या तरगीब। लिंक्डइन आपके प्रोफेशनल्स नेटवर्क को मजबूत करता है, यूट्यूब आपकी अथॉरिटी बनाता है और इंस्टाग्राम आपकी ब्रॉड इमेजिंग करता है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक स्ट्रेटेजी के तहत इस्तेमाल करना आपको एक ब्रांड बना देता है। जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो मौके खुद चलकर आपके दरवाजे पर आते हैं। याद रखें, डिजिटल दुनिया में आपका सोशल मीडिया नेटवर्क आपका सबसे बड़ा असासा है, जो आपके सोते हुए भी आपकी मार्केटिंग कर रहा होता है। नंबर 5,
इन्वेस्टमेंट का नेटवर्क, पैसा जो सोते हुए भी काम करे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि पैसा कमाने के लिए सख्त मेहनत जरूरी है। हकीकत यह है कि शुरू में मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे तो अमीर कभी नहीं हो पाएंगे। अमीर बनने का फार्मूला यह है कि पैसा आपके लिए मेहनत करे। इन्वेस्टमेंट का नेटवर्क इसी फलसफे का नाम है। इसका मतलब है कि अपनी कमाई को तकिए के नीचे या बैंक अकाउंट में रख कर इससे अफरात-ए-ज़र की नजर ना होने दें, बल्कि इसे मुख्तलिफ जगहों पर बीज की तरह बो दें ताकि वो तनावर दरख्त बन सके। अक्लमंद सरमायाकार कभी भी अपने तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखता। वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर यकीन रखता है। इसका मतलब है कि आपका सरमाया मुख्तलिफ असासों में बटा हुआ हो। कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में जो किराया दे, कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड दे, कुछ हिस्सा सोने में जो करेंसी की कदर गिरने से बचाए और कुछ हिस्सा नए स्टार्टअप्स में जो मुस्तकबिल में बड़ी ग्रोथ दे। ये इन्वेस्टमेंट का जाल एक हिफाजती डाल की तरह काम करता है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट नीचे जाती है तो सोना संभाल लेता है, अगर स्टॉक गिरते हैं तो किराए की आमदनी चलती रहती है। ये नेटवर्क आपको गैर फॉल आमदनी यानी पैसिव इनकम फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि आप छुट्टी पर भी हों, सो रहे हों या बीमार हों, आपके असासे आपके लिए कमा रहे होते हैं। हकीकी माली आजादी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सा पैसा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने अखराजात पूरे करने के लिए काम करने की जरूरत ना रहे। जब आपका इन्वेस्टमेंट नेटवर्क आपके माहाना अखराजात से ज्यादा कमा कर देने लगे तो आप सही मानों में आजाद हो जाते हैं। फिर आप काम मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से करते हैं। ये नेटवर्क बनने में वक्त लगता है, सब्र चाहिए होता है, लेकिन एक बार ये बन जाए तो ये नस्लों की तकदीर बदल देता है। ये 5 नेटवर्क्स, लोग, हुनर, बिजनेस, सोशल मीडिया और इन्वेस्टमेंट, महज नजरियात नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं जिनसे आप अपनी तकदीर को तराश सकते हैं। अब आपके पास कामयाबी का नक्शा मौजूद है, लेकिन नक्शा बजाते खुद आपको मंजिल पर नहीं ले जा सकता जब तक आप कदम ना उठाएं। उठें, जुड़ें और तामीर करें, क्योंकि दुनिया आपके नेटवर्क का इंतजार कर रही है और हम तो हैं ही आपके साथ आपकी कामयाबी तक।